وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين نبي المؤمن المعين الكريم والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، میں عرض خلوص سے قبل آقا جنت حضور مکی مدنی سرکار حضرت آمنہ کے لال عبداللہ کے نبی کے دیگر دوئے نظر نبی کے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت بشکل دوئے پاک پڑھے پڑھے میں ازاد والا سبرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آگے بڑھوں اس سے قبل ایک مسئلہ بتا رہا ہوں. ارشاد ہو ارشاد ہو. سلام کرنا یہ ضروری نہیں ہے بندے بھی ہمیشہ یاد رکھیے، مگر کوئی سلام کرے اور آپ تک اس کے آواز پہنچ جائے تو پھر جواب دینا واجب ہو جائے. یہ فقہ کا مسئلہ ہے، اس لیے اگر کوئی سلام کرے تو آپ جواب دیں. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ وقت سے بیٹھے ہوتے ہیں اور اخیر میں جب وہ کہیں السلام علیکم کیا کہتے جاتے ہیں وہ کم لوگوں کو جو جواب دیتے ہیں. حالانکہ یاد رکھیے ترک واجب انسان کو کیا بولتے ہیں کہ بھاری پڑ سکتا ہے، یہ بڑا گناہ ہے. اس لیے اعتراض کرے تو سلام کرے تو اس کا جواب دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ ابھی کے دور میں عورتیں اکثر غلطیاں کرتی ہیں اور مرد حضرات میں غلطی کرتے ہیں. اس لیے میں باہر کہتا ہوں کہ میں موقع محل دیکھ کر کے اپنے موضوع کا انتخاب کرتا ہوں. میں بتاؤں میرے پیارے اس آیت سے پہلا فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ اے محبوب آپ مسلمان مردوں سے فرما دیجیے کہ وہ اپنی پارسائی کی حفاظت کرے، پارسائی کی حفاظت کرے. یعنی جس کو صدر عورت کہا جاتا ہے، صدر عورت سمجھتے ہیں نا مرد کے لیے نام سے لے کر کے گھٹنا تک. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہاف پینٹ پہنے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا صدر کا کھلنا حرام ہے. صدر کا کھلنا کیا ہے؟ حرام ہے. صدر عورت میں سے جو حصہ آتا ہے بدن کا اس کو کھولنا کیا ہے؟ شریعت میں حرام ہے. اور یاد رکھیے آپ حرام کر رہے ہیں اور اگر کوئی بندہ یہ یقین رکھے کہ اس بات کا کھلے طور پہ صریح طور پہ انکار کر دے کہ یہ حرام نہیں ہمارے لیے حلال ہے، یعنی صریح طور پہ حرام کا اگر وہ انکار کر دے تو وہ ایمان سے خالی اگر صحیح طور پہ انکار کر دے. اگر وہ ممکن ہے حرام یا پھر فرض بنتا ہے تو مومن کی نماز ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، اس میں جا کر کے یہ مسئلہ پڑھ سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے کفر کر دیا اگر سے وہ انکار کر دیا. اسی لیے میرے پیارے آپ شریعت کے مسائل کو سمجھیں، شریعت کے مسائل کو آپ سمجھیں. آپ پینٹ نہ پہنے، آپ اپنے بچے کو نہ کھولیں، یہ بولنا کیا ہے؟ حرام ہے. قرآن کی آیت میں پیش کریں اور میں نے جو موضوع بنایا فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ مومنہ مسلمہ عورتوں سے فرما دیجئے، یعنی ان عورتوں سے فرما دیجئے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے. یہاں پر اللہ نے خاص کیا آیتوں میں تمام عورتوں کو نہیں بلکہ اسلام
फरमाया है आप मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि अपने पारसाई की हिफाजत करे, अपने शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने जीनत को न दिखाए मगर जितना खुद ही जाहिर है। अब वला युदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिनहा, ये जो आयत का टुकड़ा है इसका ताल्लुक महरमात से है। इसका ताल्लुक किससे है? महरमात से है। यानी औरतों में, औरतों के लिए जो महरम होते हैं, जैसे कि औरत का बाप, औरत का शौहर, औरत का भाई, यानी अपना जो भाई है वो, और औरत का रज़ाई भाई, औरत की रज़ाई, औरत का रज़ाई, औरत के रज़ाई भाई है, बाप भी आ जाता है उसमें। फिर मतलब कि जो भी महरमात में आते हैं, यानी जिनसे उनका निकाह हराम है, जिनसे उनका निकाह हराम है, उसके मुताबिक कुरान ने कहा है कि तुम जितना खुद ही जाहिर से क्या हाथ का हथेली हो गया या नॉर्मली अगर दुपट्टा हो सीने पे वगैरह वगैरह, तो ये महरमात के सामने महरमात के सामने महज जायज है। उनके अलावा के सामने जायज है, उनके अलावा के सामने क्या है? हराम है आपके लिए सब को खोलना, इसलिए कि वो गैर महरम है। इतनी बात समझ गए? अब मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे, अभी के दौर में खवातीन को मैं देखता हूं अक्सर वो साड़ियां इस्तेमाल करती पहनती हैं, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को साड़ी पहनने से मना फरमाया है, इसलिए कि जब साड़ी पहनती है औरतें तो औरतों का खुल जाता है, सत्र पे सत्री में तब्दील हो जाती है, जो हिस्से को छुपाने चाहिए वो हिस्सा दिखने लगता है। इसके वजह इस्लाम ने औरतों को साड़ी पहनने से मना फरमाया है। मगर मैं देखता हूँ कि कुछ हज़रात, कुछ शौहर, मैं देखता हूँ कि कुछ शौहर भी खुशी से कहते हैं अपनी बीवियों से कि आप साड़ी पहन करके आए। मेरे प्यारे बोला कि आप उसे हराम करने का हुक्म दे रहे हैं, या क़यामत के दिन आपकी पकड़ होगी। इसलिए अपनी औरतों को जितना ज़्यादा हो सके आसान तरीके से रखे, जितना ज़्यादा हो सके सादा लिबास में रखे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है। आप फरमाते हैं कि अपनी बीवियों को तुम सादा लिबास में रखो, सिंपल तरीके से रखो। औरतों को सजने संवरने का भी हुक्म दिया, और वाटे अकल, औरतों का सजना, औरतों का संवरना, औरतों को अपने आप को संवारना, औरतों का हंसनी पहनना, औरतों का ज़ेवर पहनना, औरतों का सोना पहनना, चांदी पहनना, पूरे जिस्म को ज़ीनत से आरास्ता करना, ये वैसे ही इबादत है जैसे कि नमाज पढ़ना इबादत है। मगर अपने शौहर के लिए, किसी गैर के लिए नहीं। इसलिए कि अगर कोई औरत अपनी ज़ीनत को, अपने ऊपर ज़ीनत को सजाती है, अपने बदन को संवारती है, अपने आप को सजाती है और इरादा करती है कि उसे कोई गैर महरम देखे, तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि वैसी औरतों को क़यामत के दिन उसके जिस्म को आग के कैंचियों से काट लाएगा। अल्लाह, ये किसी और का फरमान नहीं बल्कि नबी मुख्तार का फरमान है। और याद रखिए, नबी का फरमान बदला नहीं जा सकता, नबी का फरमान भी वही है। फर्क इतना है कि वो वही है गैर मकतूब में आता है और कुरान मकतूब में आता है। इसीलिए मेरी माँ और बहनें कान खोल करके सुन ले, आप अगर अपने आप को संवारती है, आप अपने आप को संवारती है, दिल में ये इरादा रखे कि हम अपने आप को अपने शौहर के लिए समझा, हम अपने आप को अपने शौहर के लिए संवारे, अपने शौहर के लिए सजाए। और आप ऐसा करती है कि यकीन माने अल्लाह तबारक व तआला आपको इस आदमी में अता करेगा। मैं आपको आगे बताता चलूं मेरे प्यारे, अभी के दौर में ख़वातीन जो गलत किया करती है, शौहर के साथ सबसे पहले ज़ुबान दराज़ी करती है। आइए मैं बताऊं, अल्लाह का फरमाते हैं कि अगर कोई औरत अपनी ज़ुबान से ये कह दे कि मैं जब से शौहर के घर आई हूँ मुझे कभी सुकून महसूस ना आया, मैं कभी चैन से ना रही, अगर कोई औरत अपना लफ्ज़ बोल दे, क्या फरमाते हैं उस औरत के ज़ुबान को अल्लाह तबारक व तआला 70 गज लंबी कर देगा। अल्लाह से इतना बड़ा अज़ाब है। शौहर का मकाम इंसान को इस एतबार से समझनी चाहिए, इस हदीस से अंदाज़ा लगानी चाहिए कि पहले आका ने इरशाद फरमाया, अगर मैं अपनी औरतों को, अगर मैं अपनी उम्मत में औरतों को हुक्म देता कि अल्लाह के अलावा तुम किसी को सजदा करो, तो तमाम ख़वातीन पे ये बात लाज़िम कर देता कि अपने अपने शौहरों को सजदा करो। मेरे ख्याल इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैंने फरमाया अगर हुक्म देता तो इससे पता चलता है कि शौहर का मकाम, शौहर का मियार क्या है। और आगे बताऊं, पहले का फरमाते हैं कि
शौहर के बदन में जख्म हो गए और उस जख्म से पीप निकले और एक खातून उस पीप को चाट ले, फिर वो ये कहे कि मैंने शौहर के हक को अदा कर दिया। यकीन माने कि वो अपने शौहर के हक को अदा नहीं किया। ये प्यारे आका ने हुक्म फरमाया और मैं आगे पैदा करने मेरे प्यारे मुआशरा हमारा बिगड़ता जा रहा है। जब हुक्म फरमाया मुसलमान ख़वातीन से कह दो, मुसलमान औरतों से, मुसलमान लड़कियों से कह दो कि अपने आप को पर्दे में रखे, अपनी सीनत को न दिखाए, मगर इतना खुद ही नहीं है। मेरे प्यारे मैं आपको बताऊं, अभी के दौर में लोग इश्क करते हैं, अभी के दौर में लोग मोहब्बत करते हैं। मैं बरसरे इश्क़ करता हूं कि अभी के दौर में जो लड़के और लड़कियां मोहब्बत करती है, करते हैं, तो याद रखें मेरे प्यारे, ये तमाम के तमाम हराम है। ये मैं कह रहा हूं, दलील के साथ बता रहा हूं, ये तमाम के तमाम हराम है। इसकी वजह क्या है कि आप इस मोहब्बत में पढ़ करके अपने वालिदैन के खिलाफ जाते हैं, आप इस मोहब्बत में पढ़ करके ज़िना वगैरह का इंतकाम करते हैं। याद रखें, इसमें महज जहन्नम की आग रखी है। जहन्नम की आग के सिवा कुछ भी नहीं है। कोई शख्स ये दावा करता है कि अरे हम तो मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत में कुछ जानता, मोहब्बत में जब मोहब्बत में हर चीज जायज होती है, बिल्कुल ही नहीं मेरे प्यारे। याद रखें, एक गैर महरम का गैर महरमा से मिलना बिल्कुल ही अकेले में तन्हाई में जायज नहीं है। अब मैं इसकी दलील इस तरह में किस तौर पर दे सकता हूँ। कौन फरमाते हैं, कौन से आप फरमाते हैं कि एक किताब है हुज्जतुल तालिबीन जो अल्लाह आपके पास मौजूद भी है, आप लेकर उनसे पढ़ सकते हैं। आप फरमाते हैं कि वक्त के वली जुनैद बगदादी हो, वक्त की वलिया राबिया बसरिया हो, पढ़ने वाली किताब कुरान मजीद हो, जगह का शरीफ हो, फिर भी मैं एक गैर महरम को गैर महरमा के साथ अकेले रहने की इजाजत नहीं दूंगा। ये कौन फरमा रहे हैं, कौन से आज़म फरमा रहे हैं। और ये एक ऐसा वली है जो बस वली ही नहीं बल्कि तमाम फुक़हा में सबसे बड़े फकीह है। आप सबसे बड़ी सबसे बड़े फकीह है, अपने वक्त के सबसे बड़े मुजद्दिद है, सबसे बड़े फकीह है, सबसे बड़े मुहद्दिस है। आप तमाम वलियों के सरदार है। आप फरमाते हैं पढ़ने वाली किताब कौन सी हो, कोई और किताब नहीं बल्कि कुरान मजीद हो, जगह मक्का शरीफ हो, और रब की वलिया राबिया बसरिया हो, और रब के वली जुनैद बगदादी हो। फिर भी अगर वो चाहे अकेले में रखना, मैं फिर भी एक गैर महरम को गैर महरमा के साथ रहने की इजाजत नहीं दूंगा। इसलिए कि जब गैर महरमा के साथ अकेले में होता है तो शैतान उसके दिल में अलग अलग ख्याल डालता है, शैतान उसके दिल में अलग अलग तरीके से ख्याल डालता है। और ये खुद हदीस पाक में है, एक किताब मिशकात शरीफ, जब आप उसको पढ़ेंगे, मिशकात शरीफ के जिल्द अव्वल में पहला इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, पहला का फरमाते हैं बेशक शैतान इंसान के खून के दौड़ने की जगह में दौड़ता है, यानी नसों में दौड़ता है, नसों में दाखिल रहता है। शैतान इंसान से बहुत ज़्यादा मुत्तसिल होता है और वो इस बात पे काबिल रहता है कि इंसान के ज़हन को इधर चाहे उधर मोड़ दे। मेरे प्यारे हुजूर फरमाते हैं, अक्सर सोचे कि अब इंसान के नफ्स का गलबा खुद होता है बालिग होने की वजह से। दूसरा, एक बालिग लड़का एक बालिग लड़की जब आपस में मिलेंगी, जाहिर सी बात है कोई कहने वाला मौलाना ही क्यों ना हो, कोई कहने वाला मुफ्ती ही क्यों ना हो, कोई कहने वाला प्रोफेसर ही क्यों ना हो, कोई कहने वाला डॉक्टर ही क्यों ना हो, कोई कहने वाला इंजीनियर ही क्यों ना हो, कोई कहने वाला कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो, कोई नेता ही क्यों ना हो। अगर कोई ये दावा करता है कि मैं गैर महरम के साथ गैर महरमा मैं किसी गैर महरमा लड़की के साथ अकेले रह के अपने आप में बर्दाश्त कर लूंगा, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए ये कौन, अगर ये मुमकिन होता तो कौन सा ये नहीं फरमाते कि मैं इजाजत नहीं दूंगा। मेरे पर ऐसे ही पता चलता है कि औरतों को कितना पर्दे में रहनी चाहिए। अभी के दौर में अक्सर औरतें बेपर्दगी का शिकार होती आ रही है। मेरे प्यारे मेरे ख़वातीन इस्लाम, आप कान खोल करके सुन ले। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ने औरतों को सबको काबे से भी बुलंद किया है। अल्लाह अल्लाह, जो चीज काबे से भी बुलंद है, सोचे खाने काबा में खिलाफ है, तो खाने काबा से जो बुलंद है तो वो कैसे पर्दा रह सकता है। और औरत का मतलब ही होता है पर्दा, और जिसका मतलब ही पर्दा हो वो अगर बेपर्दगी अख्तियार करे तो यकीन माने पर्दा को भी पर्दा होने पे शर्म कभी पर्दा कहने पे शर्म आएगी। इसलिए मेरी मां
پہنے، خاص کر جب اپنے پردے کا خیال رکھے. اور ابھی کے دور میں میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، بھتیجوں سے یہ التماس پیش کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ دنیاوی محبت میں، دنیاوی رسائل میں مبتلا نہ ہو. اپنے والدین کے عزت کا خیال رکھیں. میں تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو جتنا ہو سکے سیرت مصطفیٰ کے مطابق ڈھالیں. یاد رکھیں آپ اپنے دل میں کسی لیلا کی محبت کو داخل نہ کریں، کسی اور کی کہانی کو داخل نہ کریں، کسی غیر محرمہ کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں. بلکہ جگہ ہی نہیں ہے تو رسول گرامی مقال صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دے. اگر عاشقی بننا ہے تو پیغمبر اسلام کا عاشق بنے. اس لیے کہ یہ بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے. علامہ ایک بہت ہی بزرگ بڑے بزرگ گزرے ہیں، پانی بن کے رہنے والے ہیں. وہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں عشق و نار فی القلوب میں تحریر کو منصوب الحبیب. عشق دلوں میں ایک آگ ہے جو محبوب کے علاوہ ہر چیز کو جلا دیتی ہے. یعنی عشق میں بندے کو خود کا خیال محض اپنے معشوق کا خیال ہوتا ہے، خود کا خیال نہیں ہوتا. اس لیے اگر عورتیں ہیں تو اپنے دل میں حضرت فاطمہ الزہرا کی محبت کو داخل کرے، اور اگر مرد ہے تو اپنے دل میں رسول گرامی وقار کی محبت کو داخل کرے. اور اگر آپ نے ایسا کر دیا تو یقین مانے حب رسول کا بدلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں بلکہ اللہ کا بنایا ہوا جنت ہے. کبھی تو کسی قائل نے کہا ہے محمد کی محبت دین حق کی شک کے اوپر ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پتی پتی پھول پھول. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط افضل ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات میں اپنے گفتگو اپنی تمام کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ